Hey guys, so welcome back to my channel and I'm Basudev. Today we are going to learn chess. Yeah, and we are going to learn chess in such a way that even if you are someone who know nothing about it, will be able to understand the basics and fundamentals of chess. And hopefully by the end of this video, you will be able to at least play a normal game with your friend. And all I ask you is to have a little bit of patience because good things takes time. And ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी because there are a lot of things to learn. And but so I ask you to have a little bit of patience. और बस इतना ही and let's start. So guys, this is our chessboard, and before getting into all the technical stuff, let's first understand the chessboard. So it consists of 64 squares, and every square has its name. So like in Excel, we will have a name of every single square in this chessboard. So before that, these columns you can see, इनको हम बोलते हैं files. So यहाँ पे नाम अगर देखोगे तो A B C D given है. So basically this is our A file, this is our B file, C file, and so on till H file. In the same ways हम लोग rows को rank बुलाते हैं. So यहाँ पे भी देखो नंबर 1 2 3 4. So this is our first rank, this is second rank, this is third rank, and so on. So these are our rows and columns. So just like Excel, हम लोग यहाँ पे हर एक सेल का जैसे नाम ले लेते हैं. Similarly, अगर हमें इस स्क्वायर को बुलाना है by its name, then we are going to call it as, see देखो, E file है and fourth rank. So we are going to call it as E4. And similarly, मान लो कि मुझे इस स्क्वायर का नाम जानना है, so this square is going to be F5. So this is the chessboard, and this is how we are going to name all the squares. And now coming to chess pieces. Let's know about the chess pieces first. So to avoid confusion, let's keep all the names in English. So we call these as pawns. So these are pawns. We call this as rook. This is knight. This is bishop. This is queen, and this is our king. The same goes for this side as well. So these are the names of the pieces. Now the question comes, how does the pieces move? So for the pawns, देखो ये pawns अभी तक एक भी move इन्होंने नहीं चला है. So for the first move, where the pawns have not moved yet, we can push the pawns to two squares in the forward direction. ठीक है? Like in the next step, like इस pawn को मैं और आगे बढ़ाना है, तो we will only be able to move it to only one square. Only for the first move, for the pawns, we can move it to two squares. Also, the pawns move only vertically forward, and it cannot come back. और ये जब अटैक करते हैं तो these only attack diagonally, which means कि अगर यहाँ पे कोई ओपोनेंट का पीस हो, सॉरी, अगर यहाँ पे ओपोनेंट की कुछ पीस हो, तो दिस पॉन कैन टेक दैट पीस. अगर यहाँ पे ओपोनेंट का कोई पीस होता, so we won't be able to take it or kill it. Or what do I mean by that is, like if the opponent plays a move like f5 here, then we can easily capture this pawn. And if we play something like d5, we can also capture it. We always pawns always capture diagonally. Okay, and for example, if we play d5, then we cannot capture this pawn. These two pawns can only stare at each other but cannot do anything. ये आगे भी नहीं बढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते ये एक दूसरे का, मतलब they cannot take it, neither ये आगे भी नहीं बढ़ सकते क्योंकि दोनों एक दूसरे का रास्ता रोके हुए हैं. ठीक है? So this is how the pawn moves. Now coming to the knight. Knight बहुत ही special piece है. Even if you are unaware of chess, or even if you don't know anything about chess, you might know कि घोड़ा को मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू मिलती है चेस बोर्ड पे. So the reason for that is कि ये जो घोड़ा है, it can jump over other pieces. Like, what do I mean to say by that is, इन ये जो pieces है ना, ये इनको मान लो अगर बाहर जाना है, ठीक है, जहां पे भी जैसे भी जाना है, उसके लिए इनकी एक बेसिक क्राइटेरिया है कि इनके रास्ते में कुछ होना नहीं चाहिए. व्हाट डू आई मीन अगेन बाय दैट कि जैसे ये बिशप है, ये बाहर यहाँ पे जाना चाहता है. So this bishop cannot move to this square c4 because there is a pawn stopping its path on e2. Okay, so basically we need that an empty path for the bishop or any other pieces except the knight. So the knight can jump over other pieces. For example, this knight can jump over easily to f3. Okay, it doesn't require कि इसके लिए रास्ता खाली होना चाहिए. No, it just easily can jump over f3. So that's how the knight moves, and the knight moves in 2.5 squares in basically in L-shaped way. This is an L. See,
So 2 square in one direction and 90 degree from there. So this is how the knight moves. And this is how the knight moves. So now coming to the bishop, so the bishop moves always horizontally. Okay, for example, like this, now the bishop can go to this square. It will always move diagonally. I'm really sorry, I said horizontally. This always moves diagonally. Any number of squares always diagonally. Now coming to the rooks, so the rooks can move only either vertically or horizontally to any number of squares, given that its path should be empty. So that's how the rook moves. And now coming to the most important piece, the queen. So the queen can move either horizontally, diagonally, or vertically to any number of squares, given that the path should be empty. And this is also why that it is also known as the most important piece and most powerful piece in the chess game. And the remaining piece is the king. So the king can move only one square in either direction, either like horizontally, vertically, in any way, in any direction, just one square. So the mobility of the king is very limited, even though it is the like most important piece, because if you kill the king, then that's a game over. So that's how the pieces move. Now coming to the value of pieces. See, during the game, there will be times when you need to trade your pieces with your opponent's pieces. So during that time, you have to make decision. You have to take a decision whether to trade your bishop with opponent's rook. And to get a better idea what to do in circumstances like that, there is a point system allotted, and a point system has been created in which every piece has its own point, so that the players can get an idea when to trade and when to not. So the point systems are something like the pawn consists of one point. ठीक है, सबसे कमजोर piece soldier, इनके पास बस एक ही point है. The bishop and the knight both consist of 3 points. ठीक है, ऐसे there is lots of debate which is more important, 3 or 2, but like as per the legends of the game, bishop seems to have a little more importance than the knight. So, but technically in terms of points, they both consist of 3 points. Coming to the rook consists of 5 points. So this point system actually gives you an idea that this rook is more important than this knight and this bishop. But however, this is actually not true in all the cases. It is actually positional based. In certain positions, this bishop would be more powerful than the rook, even though it consists of only 3 points. So this is something that we need to look out for, and this is something we will learn as we play and as we move on. So the rook consists of 5 points, and the queen, most important piece, consists of 9 points. And the king doesn't have any point, because if you get the king, the game's over. So that's the value of the pieces. Now, it's not like we can play like randomly, we can make any move. There are certain principles that needs to be followed. So we are going to learn those principles. So the first principle is to control the center. So the question comes like, what is the center? So these 4 squares are known as center of the chessboard, which are also known as central squares. And D4, E5, D4 and D5. So these are known as central squares. तो इनको हमें कंट्रोल करना है. So the question comes, क्या फायदा होगा कंट्रोल करके? So इससे फायदा ये होगा, person who controls the center actually controls the game. I'm not saying that that person is going to win the game or is in a winning position, but if you control the center, you will be deciding how your opponent should react. Basically, controlling the center means you are driving your own car. If the opponent controls the center, it means you are sitting in the backseat of that car, where he will decide what happens and you have to react as per his moves. So in chess, the first principle is control the center. So we need to control the centers. Now, how are we going to control these centers? So there are many moves to control the center. One of those moves are like E4. ठीक है, E4 से देखो ये सेंटर को हमने अपना ले लिया. ठीक है, ये डायगोनली कंट्रोल करता है, तो ये सेंटर ये डायगोनली कंट्रोल करता है, तो ये स्क्वायर भी अपना कंट्रोल हो गया. So this is a very standard and very preferred move actually. So this is very preferred move. And another move is knight to F3. We are controlling the center again, these 2 squares. So knight to F3 is also a very good move. Another move you can play is knight to C3. Again, we are controlling these 2 squares. So it is also controlling the center. And another thing is you can play also D4C. These 2 squares we are actually controlling now.
So these are the moves which controls the center and are very good. So our first principle is control the center. Just for like चारों ही moves बहुत अच्छे हैं and we can play anything, but for like simplification, let's just play E4 right now. This is the most played move and most preferred move as well. So E4. Now comes our second principle, which is to like अब हम as a black भी हमें सोचना है, black का भी same principle apply होता है to control the center. So it also has many moves. Suppose इसने E5 खेल दिया, ठीक है, same E4 E5. Now comes to our second principle. So our second principle says develop your pieces. ठीक है, तो ये जो pieces है ना, they are doing nothing right now sitting on the first rank. ये इनका भी कोई वैल्यू ही नहीं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हमें इन्हें गेम में लाना पड़ेगा. In order to do that, we have to develop these. So we have to develop these pieces. Like I have developed this knight. ये यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं कर रहा था, यहाँ बैठ कर बहुत कुछ कर रहा है. देखो इन स्क्वायर्स के ऊपर कंट्रोल कर रहा है. Also it is saying that I am going to take this pawn because this pawn is undefended. हमने सेंटर पे भी कंट्रोल किया, हमने पीस भी डेवलप किया और हमने इसके ऊपर अटैक भी कर दिया. So now black has to play such a move in which उसका पीस भी डेवलप हो, उसका सेंटर भी कंट्रोल हो और उसको इस पीस को भी डिफेंड करना है. ठीक है. So one of the very preferred move in this position is knight to c6. Okay, so black at this position can play a move like c6. So c6 again देखो develop piece तो develop हो ही गया. ठीक है. At the same time it is now protecting the e5 pawn. So it's like black made this move to save this e5 pawn and at the same time develop its pieces and also to gain more control of the center. So we are going to follow the same principle, which is to develop your pieces. क्योंकि अब देखो as a white what are you going to do? So हमारा principle बिल्कुल same है. Principle remains. Our objective is very clear, is to control the center and to develop your pieces. So now we are going to develop this bishop, क्योंकि हमने ये move जो खेला था E4, इससे हमारे bishop का रास्ता खुल गया था. This is also why E4 is very popular. बिकॉज इससे हमारे बिशप का रास्ता खुल जाता है, तो फ्यूचर में डेवलप करने में थोड़ी आसानी होती है. सो राइट नाउ लाइक आई कैन प्ले अ मूव लाइक E2. ठीक है, बिशप टू E2 और बिशप टू C4 और बिशप टू C5. These three are very standard moves. You can also play to D3, but D3 is not a good move. किसी और दिन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे क्यों. But फिलहाल के लिए these three moves, and one of my favorite moves out of all these three options is to bishop to C4. ठीक है, हमने bishop को develop कर दिया. अब now the question is भाई C4 ही क्यों? So the purpose remains same. Our objective remains same. Control the center. Now this bishop is going to control this center. एक central square है, तो हमारा पहला objective क्या था? To control the center. Second is develop the pieces. तो हमने piece को develop भी कर लिया. So this is why it's a very standard and normal move. Lots of players prefer this. इस पूरे setup को also known as Italian game. The इसकी पीछे की history बाद में बताते हैं, but just for knowledge, just for like background for this information, this setup is known as the Italian game. कि मैंने I prefer, like I can say that I like to play the Italian game. This setup is known as Italian game. So apart from this, black क्या करेगा? So black का objective भी very same है. ठीक है, to develop the piece and making sure that we gain more control over the center. So a move like bishop to C5 is very normal कि हाँ मैंने यहाँ पे इस सेंटर को देखो मैंने ज्यादा कंट्रोल कर लिया, मेरे पीस भी डेवलप हो गए हैं. ठीक है. Now comes our third principle. तो हमारा पहला principle क्या है? Control the center. Second principle is to develop your pieces. Now third principle is to castle. ठीक है, I know new term क्या है castle. So I'm going to show you what is castling. So castling is actually a special move. Okay, this is called castling. So basically the king can move only one square. But अभी जैसा मैंने दिखाया, in castling when we castle, the king moved to G1 from E1. So technically अगर king सिर्फ एक ही स्क्वायर मूव कर सकता है, then it should have gone to only F1, not G1. So like how is this possible? This is an illegal move. No, it's not. So there is a special move called castling in which the king can move two squares. ठीक है, अब देखते हैं castling. पहले तो castling की बात करने से पहले है कि castling, why is castling important? Castling करना क्यों है? So see,
अभी क्या हुआ, व्हाट्स द डिफरेंस, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? सो द डिफरेंस इज किंग आ चुका है G1 पे, E1 से G1 पे, एंड जो रुक है जो कि H1 पे था वो F1 पे आ चुका है. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कासलिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले जो किंग था ना वो हमारा E1 पे था. सो अगर तुम देखा जाए, अगर मान लो ये पॉन्स नहीं है, सो इस किंग के ऊपर अटैक आ सकता है. कहाँ कहाँ से? देखो, ये इस डायगोनल से, इस डायगोनल से, स्ट्रेट, ठीक है, एंड दिस इज वेरी लाइक इलॉजिकल बट मे बी ऑन दिस डायरेक्शन एज वेल. सो अगर किंग सेंटर पे रहेगा तो इसको बहुत बहुत मतलब चारों तरफ से इस पे अटैक आ सकता है. नाउ क्या हो गया ना, व्हेन द किंग मूव टू दिस साइड, अब क्या है, देखो सामने से दिस पॉन्स आर लाइक अ वॉल, ये एक दीवार की तरह किंग को बचा रहे हैं. ठीक है, नाउ चूंकि द किंग इज लाइक इन द कॉर्नर साइड, इसके ऊपर ज्यादा अटैक आने के चांसेस नहीं है. व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज दैट आवर किंग इज नाउ मोर सेफ compared to when it was on E1 square. ठीक है, if you are unable to comprehend this, it's okay. In future I'm going to show you games where a player who hasn't castled has lost the game just because he hasn't castled. ठीक है, तो ये गेम्स बाद में देखेंगे. जस्ट फॉर नाउ रिमेंबर दैट at least within a span of 10 moves you need to castle. ठीक है, सिंपल. एंड ऑल्सो देर आर सम रूल्स फॉर कासल. ऐसा नहीं है कि हम कभी भी कासल कर सकते हैं. देर आर सम रूल्स विच वी आर गोइंग टू सी नाउ. सो कासल करने के लिए पहला रूल ये बोलता है दैट द किंग एंड द रुक शुड नॉट हैव मूव्ड येट. मतलब कि यहाँ पे किंग और रुक अभी तक एक बार भी कोई मतलब इन्होंने ये दे शुड नॉट हैव मूव, ये हिले हुए नहीं होने चाहिए, अपने होम स्क्वायर पे होने चाहिए, और इन दोनों में से किसी ने भी एक भी मूव नहीं चला होगा. तो दिस इज आवर फर्स्ट रूल. सेकेंड इज देयर शुड नॉट बी एनी पीस बिटवीन दीज टू. ठीक है, लाइक पहले ये बिशप और नाइट यहाँ पे था तो वी कैन नॉट कासल. ये यहाँ पे खाली होना चाहिए इन दोनों के बीच का रास्ता, तो ही हम इसे कासल कर सकते हैं. Now you might be able to like interpret that why I played f3 and bishop to c4, not like ये मैंने एक नाइट खेल सकता था, यहाँ से निकाल सकता था, कुछ और क्यों नहीं किया. इट्स बिकॉज माई अल्टीमेट गोल वाज टू कासल, और उसके लिए ये दो पीसेस को नहीं होना चाहिए यहाँ पे अपने होम स्क्वायर पे, तो मैंने इनको शुरुआत से निकालने की कोशिश की. दैट्स व्हाई आई मेड दिस मूव्स स्पेसिफिकली सो दैट आई कैन कासल इजीली एंड अर्ली. So ये तो हो गया. And the third criteria for to castle is कि the king should not be in check, which means that imagine अगर ये pawn यहाँ पे ना हो और ये bishop यहाँ पे हो, तो यहाँ पे से जब attack आएगा, so we cannot castle at that time when the king is in check, or if these two squares are under check. मतलब अभी देखो ये बिशप, देखो ये बिशप इस पॉन के ऊपर नजर रखे हुए इसको टारगेट कर रहा है अभी फिलहाल. ठीक है, अगर ये पॉन ना हो, जस्ट इमेजिन सपोज दैट दिस पॉन इज नॉट हियर, ये गायब हो चुका है किसी तरह से, तो दिस बिशप इज गोइंग टू बी एक्स-रेइंग ऑन दिस डायगोनल. ठीक है, ये पॉन यहाँ पे नहीं है तो ये यहाँ पे मतलब इसको देख रहा है, ये स्क्वायर इसके टारगेट. इन दिस सिनेरियो वी कैन नॉट कासल. ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया इज कि there should not be any piece between the king and the rook, and the third criteria is इन दोनों बीच का स्क्वायर या king should not be under check or under attack. ठीक है, ये तीन क्राइटेरिया जब फुलफिल हो जाते हैं, only in that scenario we can castle. So this is our third principle. Now a question might occur to you कि भाई रुक तो इस साइड में भी है, तो we can castle this side as well. Yes, you can castle this side as well. इसको एक्चुअली हम लोग देखो यहाँ पे क्वीन है ना, वी कॉल दिस एज क्वीन साइड कासलिंग. ठीक है, एंड दिस इज किंग साइड कासलिंग, और नॉर्मली वी कैन कॉल इट एज कासलिंग. इसको क्वीन साइड कासलिंग बोलते हैं, क्वीन है. तो वी कैन ऑल्सो कासल ड्यूरिंग, इस तरफ भी हम लोग कासल कर सकते हैं, बट देर इज सम प्रॉब्लम, लाइक थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें मेहनत करना पड़ेगा कासल करने के लिए. क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? बिकॉज सी इन दोनों के बीच में सिर्फ दो पीस थे, तो मैंने दो मूव में निकाल दिया इन लोगों को, तब मैं कासल कर सकता हूँ. बट इफ वी हैव टू सी, यहाँ पे मुझे कासलिंग करनी तो हमें तीन पीस निकालने पड़ेंगे. ठीक है, इस बिशप को निकालने के लिए आइदर वी हैव टू मूव आइदर ऑफ दीज टू पॉन्स, आइदर D2 और B2, इन दोनों में से किसी को निकालेंगे तो ये बिशप निकलेगा. नाइट यहाँ पे जा सकता है इजीली. इसके बाद हमें क्वीन को भी निकालना पड़ेगा यहाँ से, तब जाके हम इस साइड कासलिंग कर सकते हैं.
so it is a bit like of ज्यादा मेहनत लगेगा और थोड़ा actually to be very honest it's a bit risky. क्यों risky है? Maybe I'll show you in another game, but generally normally people castle to the inside castling until unless you find some extremely like बहुत कुछ खतरनाक advantage मिल रहा तुम्हें, then only we castle on that side. So for now let's just simply castle to the queen side. So हम लोगों ने कर लिया castle, ये होगी कास्लिंग. अब एज अ ब्लैक क्या होगा? सो ब्लैक के लिए सारे प्रिंसिपल एग्जैक्ट सेम है. ब्लैक इज आल्सो लाइक कि भाई मुझे भी अपने पीसेस डेवलप करना है, सेंटर कंट्रोल करना और कासल करना है. तो ब्लैक वांट्स टू कासल. ठीक है, तो भाई कासल कैसे करें? क्योंकि अभी तो नाइट पिच में है, इसका मतलब अगर मुझे कासल करना है एज अ ब्लैक तो मुझे नाइट को निकालना होगा. ठीक है, सो देयर आर 2-3 मूव्स. ये नाइट यहाँ देखो, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है. ठीक है, सो मतलब तीनों जगह खेल सकते हैं, बट best would be to put it here. Okay, not best, but like the most logical thing would be to put it to f6. इसके पीछे का रीजन ये है कि देखो ये पॉन अभी हैंगिंग है, इसके ऊपर कोई अटैक नहीं है, मतलब इसके ऊपर कोई सॉरी डिफेंडर नहीं है. सो इट्स लाइक मैं इस पॉन को अटैक करूंगा. सो माय नेक्स्ट मूव एज अ वाइट इज टू डिफेंड दिस पॉन, एल्स आई एम गोइंग टू लूज दिस पॉन. तो हमें इसको बचाना पड़ेगा. ठीक है, उसने अटैक भी किया, पीस भी डेवलप किया, सेंटर पे भी कंट्रोल. अब उसकी थोड़ी सी पहले कंपेरिजन में थोड़ी सी ज्यादा उसके ऊपर सेंटर कंट्रोल भी आ गया. So that's why this is one of the logical moves that black very often plays here. Now as a white, what do we want? Okay, I also forgot to tell you another advantage of castling. Okay, you can say it as the main advantage of castling actually. So castling हमने क्यों किया? For king safety. Actually there is another purpose of castling. So this is rook, right? ये rook से हमारे. How does a rook move? Okay, so the rook moves horizontally and vertically. But it cannot jump over other piece. मतलब ये जो रुक है ये यहाँ पे नहीं आ सकता है, ना ही इन स्क्वायर्स के ऊपर इसका कंट्रोल है. क्योंकि अभी इसका ये जो पॉन है इसको ब्लॉक कर रहा है. एंड रुक इज बेसिकली सेइंग भाई मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं अपने ही लोगों के द्वारा मुझे बांध लिया गया है अपने ही लोगों द्वारा. मेरे खुद के ही लोग मेरी मतलब पावर को यूज नहीं करने दे रहे, मुझे बाधा बन रहे हैं मेरे पर्पस के लिए. सो इट्स लाइक कि मुझे यहाँ पे नहीं होना है. So the question for you is, where should a rook be? What should be a favorite square for a rook? Okay, so where does a rook want to be? So the rook want to be in such a place where it can so it can execute its power. Right now this rook is helpless. ठीक है, ये कुछ भी नहीं कर रहा. It's like normal a piece, कुछ काम का नहीं है. What does this rook want? This rook wants to come to an open file. I hope you remember these are our files. ठीक है, ओपन फाइल्स का मतलब होता है जैसे कि अभी ये क्लोज्ड फाइल है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका खुद का पॉन है. फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन अगर ये पॉन यहाँ पे ना हो तो ये जो रुक है he'll be putting pressure over this file and basically to this pawn. तो अगर किसी तरह से इस पॉन के ऊपर और ज्यादा प्रेशर आ गया then it could be a threat, but right now it isn't. क्यों? क्योंकि ये रुक जो है मतलब यहाँ पे अभी कुछ नहीं कर रहा. सो बेसिकली व्हाट डज दिस रुक वांट? दिस रुक वांट्स एन ओपन फाइल. तो देखो हमने जब कासल किया तो ये आ गया f1 पे. यू विल बी से अभी भी क्या ही हो गया, अभी भी कहाँ पावर एग्जर्ट कर पा रहा है, ये तो इसका खुद का पॉन रुका हुआ है. बिल्कुल सही. ये अभी भी हमारे पास ये रुक अभी भी ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है बिकॉज देयर इज अ पॉन ऑन f2. ठीक है, तो इसके चलते हम ज्यादा कर नहीं पा रहे. बट आवर एम इज कि देखो हमने सबसे पहला मूव क्या खेला था, e4 खेला था. ठीक है, we can call this file as semi open file. अब ये थोड़ा सा खुल चुका है ये फाइल. So what do we want? We want to put this rook on even square. ठीक है, ये इवन पे आ जाएगा तो इस पॉन को सपोर्ट करेगा, डिफेंड करेगा. एंड इन फ्यूचर जब ये पॉन्स खत्म हो जाएंगे, मतलब ट्रेड हो जाएंगे, ये पॉन्स चले जाएंगे बोर्ड से, देन दिस रुक इज गोइंग टू स्टेयर डाउन दिस फाइल. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द रुक वांट्स, ओपन फाइल्स. तो हमने कासल किया था. मेरा मतलब अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इस रुक को हम यहाँ पे इवन के ऊपर खेलेंगे सो दैट इट गेट्स एटलीस्ट सेमी ओपन फाइल से मिलना चाहिए. सो दिस इज द अनदर एडवांटेज ऑफ कासलिंग. ठीक है, अब फिर से लेट्स गेट बैक टू द गेम. ब्लैक प्लेड टू knight to f6 attacking our pawn on e4. अब हमें इस pawn को defend करना है. There are many ways to defend this pawn. We can play to d3, we can play knight to c3, we can also play knight to e1. These are three moves that through which we are going to defend this pawn. तीनों में से कोई भी खेल सकते हैं. We can also play, but like for
मतलब तीनों में से कोई भी ऑप्शन है, यू कैन प्ले एनीवन, बट आई चूज हियर टू प्ले नाइट टू C3। व्हाई? बिकॉज आई वांट टू डेवलप माय पीस। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर द प्रिंसिपल, कंट्रोल द सेंटर, डेवलप योर पीसेस, कासल। तो मैंने अभी अपने पीस को डेवलप किया। what do I want? I want to develop all my pieces by the at least by the end of 12 to 13 moves. I want my pieces to be developed. Pieces जैसे डेवलप होंगे, you will feel powerful. कैसे? How am I feeling powerful? अभी देखो ये, ठीक है, इन दोनों के ऊपर प्रेशर बनाया हुआ है, ये जो है इस स्क्वायर के ऊपर प्रेशर बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो नाइट आ गया, इसके ऊपर और इसके ऊपर इन दो स्क्वायर को और ज्यादा मतलब कंट्रोल किया हुआ है। तो जैसे जैसे हमारे पीस गेम्स में इन्वॉल्व होंगे, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, हमारा पावर बढ़ेगा, एंड दैट्स व्हेन द एक्चुअल चेस बिगिंस, कि कहाँ क्या हो रहा है, मैं कब किसके ऊपर अटैक कर रहा हूँ, कब डिफेंड करना है, ये सब देन द रियल चेस विल एक्चुअली बिगिन। राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द चेस बैटल। सो आई प्लेड दिस मूव, यहाँ पे आ गया। अब ब्लैक क्या करेगा? सो आई होप यू गेट दिस। द नेक्स्ट मूव फॉर ब्लैक, द आइडियल मूव हियर इज टू कासल। हमें भी कासल करना भाई, अपने किंग को सेव करना। सो द किंग कासल अगेन, सेम क्राइटेरिया फॉर कासलिंग फॉर बोथ ब्लैक एंड व्हाइट, एंड हमने यहाँ पे कासल कर लिया। अब क्या? अब क्या? अब एज अ व्हाइट क्या करेंगे? हमारा तीन प्रिंसिपल थे, तीनों हमने फॉलो कर ली, which is to control the center, develop your pieces and castle. So next move for white is, white remains the same, to follow the more principle, कि हमें अपनी कंट्रोल, अपने सेंटर पे कंट्रोल और ज्यादा बढ़ानी है, अपने पीसेस को डेवलप करना है। सो लाइक अभी देखो मेरा अनडेवलप्ड पीस कौन सा है? एक दो, ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो से दिस रुक्स, इन लोगों को थोड़ा डेवलप करना है। तो पहले तो चलो मैं बिशप के ऊपर सोचता हूँ, बिशप को कैसे डेवलप किया जाए। So the two ways through which we can develop the bishop is by like playing either to D3 or D4। ठीक है, D4 would be a very committal move, बहुत ज्यादा मतलब कमिटमेंट है इसमें। So generally हम लोग इतना जल्दी ये नहीं खेलेंगे, we can play D3, और at the same time we can play B3। B3 का क्या होगा, हम लोग we can put the bishop at B2 square। इससे क्या होगा ना, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा ना। व्हाट डज बिशप्स आर फॉर, मतलब बिशप्स को हम लोग चेस के टर्म्स में, चेस के वर्ल्ड में वी कॉल इट एज स्नाइपर्स। ठीक है, आई होप यू प्ले वीडियो गेम्स और वहां पे स्नाइपर्स का मतलब पता हो। स्नाइपर्स आर द पीपल हु लाइक बहुत दूर से ही अपने टारगेट को शूट करते हैं बाय गन और समथिंग। सो व्हाई डू वी कॉल द बिशप एज स्नाइपर्स? सो देखो फॉर एग्जांपल, अभी मैं बस दिखा रहा हूँ फॉर जनरल, बस एक ऐसे मूव करके, मान लो अभी ब्लैक ने भी कुछ भी खेल दिया तो ये खेल दिया। नाउ आई पुट दिस बिशप हियर। अब देखो मेरा पर्पस क्या है। ठीक है, सो द पर्पस ऑफ द बिशप इज कि, सो दिस बिशप एक्ट्स लाइक अ स्नाइपर। ठीक है, अभी देखो अभी क्या है, इस बिशप के सामने पे ये नाइट है, ये पॉन है, ठीक है, ये नाइट है, ये पॉन है। सो हाउ इज दिस एक्टिंग लाइक अ स्नाइपर? सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ लॉन्ग टर्म प्लान। ये मेरा अभी का प्लान नहीं है, ये मैंने मूव खेल के रख दिया, बट व्हाट आई एम एमिंग फॉर इज समथिंग, इज इट्स इन द फ्यूचर, कि एट द टाइम, अभी से 15-20 मूव्स के बाद क्या होंगी ना, ये बोर्ड बहुत ज्यादा खाली हो जाएगा। बाय द टाइम वी रीचेस टू द एंड फेज ऑफ द गेम, ये सारे पीसेस खाली हो जाएंगे। उस टाइम पे ये बिशप जो है, देखो ये स्नाइपर की तरह देख रहा है यहाँ पे, तो इट्स लाइक कि ये किंग खतरे में है। किंग के आसपास, मतलब ये जो दीवार है, बेसिकली हमें इस दीवार को तोड़ना है और किंग को चेकमेट करना है। सो हमने अपने पीस को लगा दिया कि अब से 15-20 मूव के बाद दिस पीस विल बिकम एक्टिव। अभी के लिए नहीं, दिस लाइक समथिंग कॉल्ड फ्यूचरिस्टिक। हमें फ्यूचर को देख के चलना है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, तो उसके लिए हम अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं। बिसाइड्स, if you also if you pay focus on the chessboard, you will find these acts like snipers, and these bishops move diagonally। ठीक है, ये diagonally move करते हैं। So this bishop, when this bishop will be the most powerful, so this bishop will be most powerful when it is staying or when it is standing on the longest diagonal। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये बिशप देख रहे हो, ठीक है, कितने स्क्वायर्स के ऊपर ये कंट्रोल कर रहा है? 1 2 3। ठीक है, इन फ्यूचर इसको भी मे बी ये 4, ठीक है, 5 6, दिस 6 स्क्वायर जिस इस बिशप की नजर है, पावर है, इसमें वो कुछ कर सकता है। अभी करेगा नहीं, बिकॉज दिस पॉन इज देयर एंड दिस टू पॉन्स आर देयर, बट ये कर सकता है, उसके पास ये पावर है। बट इस बिशप के बारे में देखो,
This bishop is actually protecting this knight, this rook, sorry, this knight, and in future देखो कितना लंबा diagonal है. Basically R2 squares के ऊपर कंट्रोल कर रहा है. This bishop is very powerful when it gets activated. अभी ये activated नहीं है, so इतना powerful नहीं है, but in future it will become very powerful if the diagonal gets clear. ठीक है. इन द सेम वे तुम ये सोच सकते हो कि ये बिशप अगर हम यहाँ पे रख दें तो ये जो ये डायगोनल है, देख रहे हो, ये इट इज आल्सो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल्स. ये देखो ये 4 लॉन्गेस्ट डायगोनल्स है, राइट. अगर अपने बिशप को हम इस तरह से रख दें तो इन फ्यूचर बहुत देर के बाद ये बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल हो जाते हैं. सो वी ऑलवेज ट्राई कि अपने बिशप को इधर मतलब डार्क स्क्वायर बिशप को b2 पे रखें या g2 पे रखें, इससे फायदा होता है. बट इट इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी कि हमेशा ही इससे फायदा होगा. दिस इज द जनरल रूल. ठीक है. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. बहुत सारे एक्सेप्शन पड़े पड़े हैं इसमें. तो फिलहाल अगर पॉसिबल है कर सकते हैं तो ये दिस इज प्रेफरेबल. ठीक है. अब हम चलते हैं थोड़ा सा बैक. तो हमने बताया था कि हमें डेवलप करना है अपने बिशप को. ठीक है. इस बिशप को देयर आर टू वेज टू डेवलप इट, दिस एंड दिस. अभी मैंने ये बताया तो चलो लेट्स डू इट कि हम इसको ऐसे ही डेवलप करते हैं. ठीक है. इसने इस निकाला कि मे बी ये इस बिशप को डेवलप करेगा. हमने इसको यहाँ पे डेवलप किया तो आवर अनदर पीस गेट्स डेवलप. अब ब्लैक क्या करेगा? ब्लैक ऑल्सो हैज द सेम कंसेप्ट कि अब मुझे भी अपने पीसेस को डेवलप करना है. सो ब्लैक कैन प्ले दिस स्क्वायर की चैलेंज करेगा, भाई ये यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे ट्रेड का सिंबल है. दिस स्क्वायर विल बी अ ब्लंडर बिकॉज ये पॉन जो हमने रखा था, वी विल टेक दैट बिशप. व्हाट आर द अदर पॉसिबल मूव्स? द अदर पॉसिबल मूव इज टू प्ले नाइट 4. ठीक है. सो वेरी प्रेफरेबली ब्लैक ऑलवेज प्ले g4. ठीक है. यहाँ पे अलग से एक कॉन्सेप्ट आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पिन. ठीक है. हम लोग पेपर को पिन करते हैं ना, पिन करके रख दिया ताकि पेपर यहाँ से वहां ना जाए. बेसिकली व्हाट डू वी यूज द पिन फॉर? सो दैट कि जिस चीज के ऊपर आप पिन कर रहे हो बेसिकली आप नहीं चाहते वो उस जगह से हिले. यू डोंट वांट दैट ऑब्जेक्ट और जस्ट दैट पीस टू मूव. अभी क्या है ये, दिस इज अ पिन. व्हाई दिस इज अ पिन? बिकॉज ये जो नाइट है ना, दिस नाइट गॉट पिन्ड राइट नाउ. हाउ? बिकॉज if you move this knight anywhere, suppose मैंने इसको यहाँ पे खेल दिया, I'll take your queen and it is almost you can resign at this place. ठीक है. Until unless your opponent and you are at a very low level, there is still hope. But if it's in a very high level chess game, then it's resignable at here. मतलब white should resign here because you lost the queen. ठीक है. So this is the concept of pin, and also pins are of two types. One is direct pin and another is indirect pin. This is actually indirect pin. इन दोनों के बीच का डिफरेंस I will tell you later on. ठीक है. बट अभी के लिए जानो कि this is pin, that because I don't want this knight to move. ठीक है. ये नाइट यहाँ से हिलना नहीं जब मैंने पिन कर दिया. So as a white, what should I want? So always remember, if your piece gets pinned, you have to remove that pin. Wharna it could be very dangerous. ये भी बाद में है. अभी के लिए बस इतना जान लो कि अगर तुमको ओपोनेंट पिन कर दे रहा है, इट्स नॉट अ गुड थिंग. इट्स अ गुड थिंग फॉर योर ओपोनेंट. यू डोंट वांट टू गेट पिन्ड राइट नाउ. सो हाउ डू वी रिमूव दिस पिन? Yeah. So there are many ways to remove this pin. We can play the bishop to e2. तो इससे क्या होगा ना, मान लो फॉर एग्जांपल मैं जो दिखाना चाहता हूँ, दिस नाइट कैन नाउ मूव. ये कहीं पे मान लो फॉर एग्जांपल इसने मान लो कुछ ऐसे खेला रैंडम मूव एक. ठीक है. मैंने ये खेल दिया. अब दिस इज नॉट पिन, दिस नाइट कैन मूव. अगर अपने बिशप को मारोगे, मैं भी बिशप को मतलब आई विल रिकैप्चर. एंड ऑलवेज रिमेंबर द ट्रेड. मैंने पॉइंट सिस्टम बताया था ना. दिस बिशप इज ऑफ 3 पॉइंट, दिस बिशप ऑफ 3 पॉइंट्स. तो अगर इसने इसको बिशप को मारा तो ब्लैक गॉट 3 पॉइंट्स. I recaptured this bishop. I also got 3 points. So like overall we both get nothing. like neutral रहा. तुम्हें भी 3 पॉइंट मिला, मुझे भी 3 पॉइंट मिला. It's neutral. So like यहाँ ले लो बिशप को, लोगे मैं भी कैप्चर कर लूंगा. So this is like one way of removing the pin. Okay. And now coming back. Okay, उसने another way is कि मैं यहाँ पे इस बिशप को पुश करूं. See again the concept of points. Why point system is allotted. अभी मैं क्या बोल रहा हूँ ब्लैक को कि भाई इस बिशप को तुम्हें हटाना पड़ेगा. अगर तुम नहीं हटाओगे then I'll capture it with my pawn. ठीक है. तो ब्लैक बोल रहा है फॉर एग्जांपल, सोच लो ब्लैक बोल रहा है कि हाँ भाई कर ले हिम्मत है तो कर ले.
ठीक है भाई कर लेते हैं, चलो ब्लैक ने ऐसा कुछ खेला, ब्लैक इज चैलेंजिंग अस टू टेक दिस बिशप, ठीक है, तो हमने ले लिया, बोला बोला हाँ हाँ हाँ, तो तुम पागल हो, मैंने कैप्चर कर लिया तुम्हारे पॉन को, देखो मुझे पॉन मिल गया। नाउ दिस इज स्टुपिडिटी एट इट्स हाईएस्ट लेवल, बिकॉज व्हाई, actually this is not stupidity at highest level, but the level at which we are learning right now, it's a stupidity. Why? क्योंकि देखो what did we lost, ठीक है, हमने मारा इस बिशप को, what did we gain, we as white gained 3 points। अब इसने मार दिया पॉन को, नाइट ने मारा पॉन को, सो व्हाट डिड ही गेट 1 पॉइंट, क्योंकि पॉन के 1 पॉइंट होते हैं, बिशप के 3 पॉइंट है, सो ओवरऑल वी गेट 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट का लीड हो गया। दिस इज मेटेरियलिस्टिक चेस, ये जो पॉइंट अगर ज्यादा हो जाएगा ना, तो बाय द एंड टाइम योर मटेरियल विल बी वेरी हाई एंड देयर इज अ वेरी हाई लाइकली चांस दैट यू आर गोइंग टू विन इट। यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.2 लिखा हुआ है और +2, दिस इज मेटेरियलिस्टिक काउंट, कि अगर काउंट करोगे मेटेरियलिस्टिकली तो वी आर लीडिंग बाय 2 पॉइंट्स, सो दिस इज अ वेरी बैड मूव बाय ब्लैक। ब्लैक शुड हेयर, जब ये खेला गया तो ब्लैक शुड रिट्रीट आइदर दिस वे और टू बैक इन एनी वेज, ठीक है, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मूव्स। अभी हम उसके ऊपर नहीं जाके वी कम टू आवर अनदर प्रिंसिपल, सो प्रिंसिपल यू कैन से इज कनेक्ट द रुक्स। अभी फिलहाल तो हमें अपना रुक डेवलप भी करना है ना, राइट, ये रुक अभी कुछ नहीं कर रहे, इसको यहाँ लाना है, होपफुली इसको यहाँ लाना है, इस पॉन को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, तो अभी फिलहाल हमारे रुक्स उतने डेवलप हुए नहीं, बट व्हाट इज आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल, आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल सेज कनेक्ट द रुक्स, मतलब इन दोनों रुक्स को आपस में जोड़ो। अभी ये दोनों रुक्स जुड़े हुए नहीं है, क्यों, बिकॉज द क्वीन इज इन बिटवीन देम, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, by removing this queen from this place, from d1, so what can we do, we can play to e2, ठीक है, this is another option, else अगर हमारे पास टाइम है we can play this d3 and फिर वहां से हटा या यहाँ पे जाए, these are our options। now why do we need to connect the rooks and why this principle of connecting the rooks is at the last, ठीक है, पहले तो देखते हैं that why do we need to connect the rooks। so क्या होगा ना, मान लो ये खेल दिया, अब क्या है ना, एक्चुअली मैंने याद करो कि मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे होता तो इस साइड से भी प्रेशर आ सकता था, अटैक इस साइड से भी आ सकता था, इस साइड से भी आ सकता था, राइट। अभी क्या हो गया ना, ये जो हमारा फर्स्ट रैंक है, इस रैंक के ऊपर हमारा प्रॉपर कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल। दिस टू रुक्स आर लाइक ब्रदर्स, ये इसको डिफेंड कर रहा है, ये रुक इसको डिफेंड कर रहा है, ये रुक इसको डिफेंड कर रहा है, जस्ट लाइक ब्रदर्स, दोनों एक दूसरे को बचा रहे, दोनों एक साथ, मतलब रुक्स कनेक्टेड टुगेदर आर वेरी पावरफुल। तो एटलीस्ट ये तुम जान के रखो कि यहाँ से इस साइड से अब कोई हमारे किंग को चेक नहीं दे सकता है, ठीक है, वो तो सिंगल रुक रहने से भी नहीं दे सकता है, बट व्हेन इट्स कनेक्टेड इट्स बिकम वेरी पावरफुल। so that is why we need to connect the rooks and another thing that you should notice, इस पूरे गेम में मैंने क्वीन को सबसे लास्ट में मूव, मतलब बाकी पीसेस को आप पहले मूव किया, क्वीन को सबसे लास्ट में निकालो। people who don't know this principle actually happen to take out their queen very early in the game, सेकंड थर्ड मूव पे क्वीन को निकाल देते हैं। इट इज मतलब हाईली क्या बोले उसको, अनएडवाइजेबल, क्वीन को कभी भी शुरुआत में मत निकालो, क्वीन को हमेशा एंड में निकालना होता है। एंड द रीजन फॉर दिस इज बिकॉज क्वीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस, एंड अगर पहले निकाल दोगे ना उसके ऊपर अटैक आ जाएगा। यू डोंट बिलीव मी, अभी भी देखो, अभी भी मैंने इसको निकाला टाइम पे, बट देर इज अ वेरी हाई लाइकली चांस कि क्वीन के ऊपर अटैक आ जाए। उससे होगा क्या, चलो देखते हैं। अब ब्लैक ने खेल दिया ये मूव नाइट टू d4। अभी देखो यहाँ पे आप आ जाते हैं थोड़े लॉजिक कैलकुलेशन और थोड़े टैक्टिक्स। ये नाइट बोल रहा है कि भाई मैंने तुम्हारे क्वीन के ऊपर अटैक किया हूँ और साथ ही साथ इस बिशप के ऊपर, इस नाइट के ऊपर भी अटैक किया हूँ। ये नाइट बोल रहा है भाई मैंने इस नाइट को तो पिन करके रखा, तो ये नाइट मूव कर नहीं, सो ये नाइट मूव कर नहीं सकता बिकॉज ये नाइट पिंड है। ये अगर इस नाइट से तुमने अगर इस नाइट को मारा, ठीक है, तो मैं तुम्हारे बिशप से क्वीन को मार दूंगा, ठीक है, क्वीन चली गई तो इट्स अ वेरी बिग लॉस। ये नाइट बोल रहा है कि तुमको अब क्वीन को हटाना पड़ेगा कि तुम क्वीन को मार नहीं सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉजिक कैलकुलेशन आता है। अब एज द व्हाइट मैं क्या करूंगा, मैं अब इस क्वीन को मुझे निकालना है, बचाना है बेसिकली, ठीक है। ऑल्सो रिमेम्बर ये यहाँ पे भी नजर डाल रहा है, सी ये इस पॉन का कोई डिपेंडेंट, तो मैंने चलो खेल दिया ये मूव। अभी देखो हुआ क्या इससे, इससे हुआ ये कि मैंने क्वीन को निकाला, क्वीन के ऊपर अटैक आ गया, क्वीन को बचाने के लिए पीछे आना पड़ा। इससे हुआ क्या, ओवरऑल मैंने एक मूव वेस्ट किया, एक्चुअली दो मूव, यहाँ से मैं यहाँ गया फिर यहाँ गया,
बेसिकली उसी पोजीशन पे आ गया, मेरे 2 मूव्स वेस्ट हुए। इन दोनों मूव्स का असर ब्लैक को बहुत ज्यादा हुआ, तो उसको एडवांटेज मिल गया, उसने 2 मूव्स ऐसे खेले जिससे उसके पोजीशन को फायदा हुआ, जबकि हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। सो दिस इज नॉट गुड, एंड हेंस हमेशा क्वीन को लास्ट में निकालना होता है, सो दैट उसके ऊपर जल्दी अटैक ना आए। अगर अटैक आ गया तो हमें उसे बचाना पड़ेगा। सो दीज आर काइंड ऑफ, यू कैन कॉल इट एज द प्रिंसिपल्स ऑफ चेस। ठीक है, सो इतना बेसिक है ये चीज। अभी मैंने ये नहीं दिखाया ब्लैक कैसे खेलना नहीं खेलना है। राइट नाउ जस्ट नो दिस बेसिक प्रिंसिपल्स, and I'm going to repeat all the principles once again. So first is control the center. Okay? Second is develop your pieces. Okay? Third is castling. में castle करना है for king safety and also so that the rook can come alive. Okay? So develop the pieces, castle. Okay? Again develop the pieces, and then we are going to ये तो चलो मैंने ऐसे दिखाया था, वी आर गोइंग टू कनेक्ट द रुक्स, और ऑब्वियसली यहाँ पे अटैक आ जाएगा, बट एट द एंड अभी एक्चुअली 3-4 मूव के बाद हम इस पॉन को आगे बढ़ाएंगे, एंड देयर आर ऑप्शंस दैट वी कैन एक्सप्लोर इन ऑर्डर टू कनेक्ट द रुक्स एंड इन ऑर्डर टू टेक आउट आवर क्वीन। सो दिस इज द इंटायर चेस सेटअप्स, ये सब प्रिंसिपल्स है एक्चुअली। अभी देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच आर येट टू बी टॉट, लाइक फोर्क। अभी मैंने तुम्हें इनडायरेक्ट पिन बताया, डायरेक्ट पिन नहीं बताया। So that is also there, and there are a lot of things that are yet to explore. बहुत सारे rules होते हैं, LPDO and lots of things are there, but just for now these are the basic things. अभी देखो हमने 9-10 moves खेल लिए। So this phase of the game 9 to 10 moves for शुरुआत के जो 9-10 मूव होते हैं, we call it as opening. ठीक है, the chess game and an entire chess game can be divided into 3 parts. The first is opening, which consists of at least first to 12 moves. ठीक है, वो ओपनिंग होती है जो मैंने अभी तुम्हें बताया कैसे करना है, क्या करना है। ये इट इज लाइक कि हर किसी को पता है, हर कोई यही करता है मोस्टली, और ये सब कोई करेगा। ओपनिंग ओपनिंग जो ओपनिंग मूव्स के लिए हमें बस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, सब कोई करते हैं। तो इट इज वेरी अनलाइकली दैट वन कैन सरप्राइज समवन इन ओपनिंग। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रैंड मास्टर्स एंड ऑल, बट ओपनिंग में तुम जो भी मूव चलोगे, which it has to be logical because you are going to follow the principles. तो मतलब वो बहुत लॉजिकल मूव्स होंगे। सो बेसिकली मैं अंदाजा लगा चुका हूँ, आई एंटिसिपेटेड कि तुम ये खेलने वाले हो। सो दैट्स व्हाई इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू सरप्राइज समवन इन द ओपनिंग फेज। ओपनिंग फेज के बाद आता है मिडिल गेम। मिडिल गेम में क्या होता है ना, तुमने अपने सारे पीसेस डेवलप कर दिया, अब चेस गेम स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमें बहुत सारी टैक्टिक्स के बारे में सोचना होता है, अटैक देखना होता है, प्लान करना होता है कि हम क्या करने वाले, कैसे अटैक करने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट मतलब मिडिल गेम कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ मूव, वो बहुत ज्यादा मूव्स के भी होते हैं और उसमें बहुत सारे पीसेस ट्रेडेड हो चुके होते हैं। उसके बाद आता है एंड गेम। ठीक है, एंड गेम में क्या होते हैं ना, सारे पीसेस ऑलमोस्ट ट्रेड हो चुके हैं, बस कुछ ही पीसेस बचे हुए होते हैं। एक तो तुम्हारा किंग, इधर कुछ पॉन्स बचे होंगे, या मे बी एक रुक बचा होगा, एक या फिर एक क्वीन बचा होगा, मतलब बहुत ही कम पीसेस होते हैं। तो उसको कहते हैं एंड गेम। और अगर डिफिकल्टी के लेवल पे देखा जाए तो ओपनिंग सबसे इजी होता है, मिडिल गेम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एंड गेम जो होता है डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एंड गेम में बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। वन सिंगल मिस्टेक एंड यू माइट लूज द एंटायर गेम। So this is how the entire chess game, a simple chess game looks like. तो इतना ही होता है, वीडियो पे यहीं पे रोकते हैं, काफी लंबा हो चुका है। ठीक है, आई रियली ट्राइड माय बेस्ट टू इसको इतना लंबा ना बनाए, बट कर नहीं सकते। इफ यू हैव कवर्ड दिस फार, यू वुड हैव रियलाइज्ड वी हैव लर्नड अ लॉट, एंड बहुत कुछ अभी और करना बचा हुआ है। वी हैव अ लॉट, अ लॉन्ग वे टू गो। वो सब किसी और के वीडियो में। फिलहाल अगर तुमने यहाँ तक देख लिया, सो आई से रियली रियली थैंक यू। आई रियली होप कि तुम्हें मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताना कि हाँ, इट वाज रियली नाइस सेशन एंड यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वांट यू टू राइट समथिंग इन द कमेंट बॉक्स, जस्ट टू मेक श्योर कि मतलब ये सिर्फ वही लोग, यहाँ तक जिसने देखा बस उसे उन्हें ही ये चीज पता चलेगी, that I want you to write something like Gukesh, in case you are unfamiliar with the Indian chess. There is a World Chess Championship coming up, and he's one of the contender to win it.
So I want you to write in the comment section Gukesh. इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि तुमने पूरा देखा या नहीं देखा. So it will be actually cool कि जो लोग नहीं देखे होंगे वो comments check करेंगे कि भाई Gukesh क्यों लेकर आए हैं यहाँ पे लोग. So please mention Gukesh if you have come this far, and I want to say thank you for. I hope you have learned something new today, and I wish you all the best. Please wait for another videos like this, because धीरे धीरे हम और explore करेंगे और भी जितना सीखने को है. And for now, this is the end. I'm Basudev, and thank you for joining in. Bye bye, Tata. Thank you.